you're all having a great time and you've had a great 2023 so far. This is Ronika Wahi. I'm back with another interview. You can see, of course, who I have with me today. But before we get into the interview, do take a look at this short clip. Simran Kumar Mathur, the force behind Kali Rang, right? So I have her with me, as you can see, and she is becoming very popular on YouTube and gaining a lot of reputation as a tarot reader. But her journey has not been that easy, and she's faced a lot of struggles and challenges in life, and now she's overcome them and she's now helping other people overcome their challenges. बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी ये हेल्प कर चुकी हैं और आगे ऑफ कोर्स करती रहेंगी. आज के हमारे इंटरव्यू का एजेंडा है सिमरन कुमार माथुर की स्टोरी, काली रंग की स्टोरी जानना and ye janna how she's helping people lead better, more meaningful, more fulfilling lives. And we'll also get some guidance for the rest of this year. So do stay on for that. So thank you so much, first of all, for taking out the time for this interview. Namaste. Thank you, Ronika, for having me. It's my pleasure, dear. It's my pleasure entirely. Thank you again for taking out the time for this. So let's just start. Let's just start with your story. So, first of all, I just want to know that how did you start with tarot, right? So now you have mastered the art. So what was your journey like? How did your fascination begin, and what was your learning process? So, tarot, the whole journey of tarot has been very, very magical. And अपनी बहुत सारी वीडियोस में मैं बीच में बताती भी रहती हूँ, छोटे छोटे मेरी लाइफ के जो पार्ट्स है, क्लिप्स हैं. बट आई थिंक मोस्ट ऑफ ऑल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुई थी मेरे साथ was that when I was a child, my aunt was into tarot. She had learned tarot. She got a tarot deck home. एंड वो जब मैंने कार्ड ऐसे जाने अनजाने में एक उठाया, उससे खेलना शुरू किया, तो इट वाज समथिंग बियॉन्ड द ऑर्डिनरी दैट हैपेंड, राइट? एंड I was able to feel certain things, I was able to see certain things, एंड मुझे बहुत एक अलग टाइप का कनेक्शन फील हुआ. मैं खुद भूल गई दैट आई वाज अ चाइल्ड, एंड इट ऑलमोस्ट फेल लाइक ये चीज़ मुझे आती है, इससे मेरा ऑलरेडी कनेक्शन है. आई डोंट नो क्या है, बट मैं बस एक एक सेकंड में कनेक्ट हो गई उस आर्ट से. एंड ऑफ कोर्स फिर I left it. मैंने इतना ध्यान नहीं दिया. I was still growing up. There were still lessons. There was still a lot of learnings to happen. लेकिन मुझे एक हायर फोर्स ने स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स, जैसे ब्रेड क्रम्स रखते हैं ना, उस तरीके से वो ब्रेड क्रम्स थ्रो करते गए एंड मैं उस तरफ खींची चली गई टू फाइंड माय आंसर्स. एंड मुझे स्पिरिचुअलिटी के द्वारा इतने आंसर्स मिले अपनी लाइफ के अंदर, अपनी जर्नी के लिए, अपनी ही पास्ट लाइफ्स को लेकर बहुत कुछ रिवील हुआ मुझे. एंड आई वाज हुक्ड ऑन बाय देन, राइट? एंड ऐसे करते करते मैंने जब अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए रीड करना शुरू किया टैरो, तो मुझे समझ आने लग गया कि यस, उनकी लाइफ में वो इवेंट्स हो रहे हैं, वो सच हो रहा है जो मैं उनको बता रही हूँ, दैट्स वर्किंग फॉर देम, किसी की मदद हो रही है. And that's when I realized that one day I have to do this for the community, because जब भी एक ऐसा गिफ्ट होता है, वो हमारे खुद के लिए ही नहीं होता है. It is always to help, it is always to share with other people as well. बट ऑफ कोर्स मैंने सोचा था कि लाइफ के सेकंड हाफ में मैं जाकर जो है ये काम शुरू करूंगी, and someday when it's the right time, I will start helping people after I've already done the things मुझे जो अपनी जिंदगी में करनी है, right? Interiors was one of them, of course. But when I turned 25, that's when I got the calling, and the calling was right in my face to just begin with all these things. And मैं खुद बहुत सरप्राइज थी. मैं खुद उस calling, मैं
मेरे को थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कि आई शुड टेक इट और नॉट, मैं क्या करूं, बिकॉज इतनी जल्दी, इतनी फास्ट, एक इतना बड़ा लाइफ डिसीजन, ओवरनाइट एक करियर चेंज, एक नई चीज आप स्टार्ट कर रहे हो, एंड you're starting it with your intuition, right? Most of all, though I had my own thoughts, but I took a leap of faith. I just believed them, I believed the guidance, and I just went for it, and that's how Kali Rang also happened then. Right. So it was almost as if you were meant to do this, right? So Yes. you got these signs all through, right? From since the time you were a child. लेकिन आपने भी बताया जैसे आपने इंटीरियर्स का काम भी करा और आपके करियर की भी थोड़ी वेरिड जर्नी रही है, तो थोड़ा सा बताइए अपने करियर के बारे में, कैसे आप इंटीरियर डिजाइनर थे और हाँ आपको ये इंट्यूशन थी जैसे आपने बताया कि now you should start, but do tell us a little bit in more detail how you moved on from your first choice of being an interior designer और फिर कैसे आपने करियर में प्रोग्रेस करा and finally काली रंग कब और कैसे स्टार्ट करा. So Kali Rang I started with in 2020, and जो 2020 का साल था ना, it was एक बहुत drastic major पूरे अर्थ में ही shift आया था उस साल. And when we talk about the shift, it was not just a physical shift, it was a very big spiritual awakening process that happened as well. All the years before that, it was like a build up towards this one grand finale, and then that time everything changed. And आपने देखा होगा बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स, वर्कर्स, हेल्पर्स जो इन सब चीजों में आए, वो उस साल अपनी फुल अवेकनिंग में आए होंगे और नियरिंग दैट टाइम, राइट? बिकॉज उस टाइम ने हमें जैसे खुद की हायर सेल्फ के साथ अलाइन कर दिया, हमारा पर्पस हमारे सामने ले आए, दे मेड अस क्वेश्चन द वेरी रियलिटी, द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ आवर एंटायर लाइफ, कि आप यहाँ क्यों आए हो, आप यहाँ क्या करने आए हो, आपको तो ये भी नहीं पता कि कल आप होगे या नहीं होगे, क्या होगा नहीं होगा। इस ये जब ऐसे सवालों से आपका सामना होता है, सो you tend to question your very existence, and you ask yourself if you are really doing what you are meant to do, if you're really on the right path. जो आप कर रहे हो क्या वो 100% वैल्यू एड कर रहा है जो आप करने आए हो, या there's something more to it, right? तो एक तरीके से एक मोनोटोनस, एक रोबोटिक लाइफ जो है उससे पहले चल रही थी, एंड ऑफ कोर्स एक वो 100% सेटिस्फैक्शन जो आप फील करते हो, वो मैं भी नहीं फील कर पा रही थी अपने काम में। इवन दो इंटीरियर्स मेरा खुद का चुना हुआ फील्ड था, मुझे बहुत पसंद है आज भी, एज यू कैन सी, I have not let that die. I still keep doing those things, but now it's more towards the spiritual interiors, for example, I'm into, right? So that part of you never dies really, but you just understand कि इससे और क्या आप वैल्यू ऐड कर सकते हो, क्या और सिग्निफिकेंट है आपके लिए। और किसी को भी अगर फुलफिलमेंट एक चीज में फील होती है, कंप्लीशन फील करता है वो इंसान, तो वो कभी भी किसी और चीज के टुवर्ड्स खिंचेगा नहीं, राइट? एंड वो कॉलिंग मतलब आपकी वो फुलफिल होनी शुरू हो जाती है, दैट्स व्हेन यू फील द कंप्लीशन, राइट? सो जब मैं इंटीरियर्स में थी, I always felt like I have to do something big. I have to do something big. मुझे कुछ करना है, कुछ और है, कुछ और है. There was something beyond, like a calling I was feeling, right? And that time even I didn't know that it is interiors or it is something beyond interiors, right? But like I told you, I always knew I'm connected to spiritual work, एंड कि कभी वो जिंदगी में एक्टिव होगा जाकर, राइट? बट वो पार्ट को सुनना, वो इंट्यूशन की सुनना अपनी, कि नहीं वो टाइम आगे कहीं 30-40 साल बाद नहीं है, वो टाइम अब है, अभी है, आज है, वो आज शुरू करने की देर है, आज करो। वो जो एक लीप ऑफ फेथ था, लाइक आई टोल्ड यू, दैट वाज divinely guided to me, not once, multiple times it was there कि इंटीरियर्स छोड़ो और ये करो, you're supposed to help others, you're supposed to do something very big. And even I was a little skeptical about this because मैंने अपनी feng shui करी हुई है, right? I've done my feng shui from Lilian to Malaysia. I was into interior designing, right? I've been a political science student also, so it was a very big question for me कि सब कुछ जो मैंने academically सीखा है, जो मैंने किया है, वो सब कुछ मैं छोड़कर एक
ऐसे लाइन ऑफ वर्क में चले जाओ which is very hard paced. Yes, I have always been that person who would listen to the callings, who would listen to the guidance, who would go and do this, but still it was a very big decision, right? Because आप सब कुछ आप उस टाइम पर सोच रहे होते हो कि वर्कआउट होगा या नहीं, what Right. about our stability, what about the future, सही डिसीजन है या नहीं, राइट? बहुत सारी चीजें आपके माइंड में जो है वो चल रही होती है. But then I took a leap of faith and literally overnight मैंने interiors छोड़ा, right? And I opened Kalirang, right? With my entire everything that I had within me, मैंने Kalirang start किया. एंड काली रंग को स्टार्ट करने से पहले जो मेरी जिंदगी की लाइफ जर्नी रही है, इट हैज बीन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली टफ, राइट? एंड उस दौरान जो मैंने चीजें सीखी, वो कोई किताब या वो कोई आपको Hmm. चीज ऐसी सिखा नहीं सकती जो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस सिखाता है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम से आप कैसे नेविगेट करते हो बाहर, भगवान की हेल्प से आप कैसे डूबते नहीं और डूब गए तो वापस कैसे उठते हो, उस दौरान फेथ और होप कैसे रखते हो जब आप एक काले अंधेरी गुफा में होते हो और वहां कुछ भी नहीं होता है उस टाइम में, उस दौरान, राइट? एक्सेप्ट कीपिंग दैट लिटिल फेथ दैट सब ठीक हो जाएगा एक दिन, Right. राइट? सो इस तरीके से जो है मैं आगे बढ़ती गई अपनी लाइफ में, और एक एक चैलेंज, एक एक चीज जो मेरे रास्ते में आती गई, मैं उसको कॉन्कर करती गई. एंड जो कुछ इस दौरान मैंने अराउंड माय फैमिली, अराउंड माय फ्रेंड्स, अराउंड एवरीबॉडी अराउंड मी एंड माई सेल्फ, जो मैंने सीखा उस जर्नी में, जो मैंने भगवान के साथ वो कनेक्शन रखना भी सीखा, उनमें मानना सीखा, जो ये सब चीजों ने मेरे अंदर जो चीजें जागृत करी, काली रंग इज ऑल अबाउट दैट, right? It is not a bunch of information I read in a book and now I'm giving it to other people. No, it is everything that my life taught me, helped me overcome things in my life. जो सारी रेमेडीज है, जो सारी रीडिंग्स है, वो मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई है, वो सारी मेरी भी कहानियां है. इसलिए कहीं ना कहीं मैं इतनी अच्छे से दूसरे लोगों से समझ पाती हूँ उनके इश्यूज, एंड आई गिव देम कस्टमाइज्ड रेमेडीज ऑल्सो, बिकॉज आई बिलीव दैट हर एक इंसान अलग होता है, हर एक इंसान की जर्नी अलग होती है, हर एक इंसान उसके लिए क्या बना है और क्या नहीं, वो अलग चीजें होती है. सो इसलिए मैं कस्टमाइजेशन पे भी बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करती हूँ. एंड आई ट्रूली बिलीव दैट हर एक इंसान की हीलिंग जर्नी अलग है, सबका सोल पाथ अलग है, सबका टाइम लाइन अलग है, और अपनी वीडियोस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज अपने कॉन्वर्सेशन में, अपने डायलॉग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं इंस्टिल करती हूँ, दैट इज आवर बॉन्डिंग विद गॉड. हमारे रूट्स, जब भगवान में स्थिर होते हैं, चाहे वो कोई भी आप हायर पावर में मानो, राइट? लेकिन Right. जब वहां पे आपके रूट स्थिर है ना, तो आपका जो ट्री है, आपका जो पेड़ है, वो कभी गिरेगा नहीं, राइट? आप खड़े रहोगे, चाहे जितने मर्जी तूफान आए, चाहे जो मर्जी हो जिंदगी के अंदर, यू विल स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड आप उसको सरपास कर जाओगे अपनी लाइफ के अंदर, राइट? सो दैट इज ओवरऑल हाउ इट हैपेंड. इट वाज ट्रूली एन ओवरनाइट जर्नी जो हुआ, बट यस, मेरी जिंदगी जो मेरी खुद साधनाएं थी, मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थी, वो कुछ सालों के लिए चली काली रंग से पहले. सो it was like they were preparing me to open Kali Rang, but that opening could not have happened overnight अगर वो मेरा preparation नहीं हुआ होता उससे पहले, right? So that Right. was how it happened. आई थिंक इससे भी एक लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ये कर पाते हैं. आई मीन हम में से बहुत लोगों को लगता है कि जो हम कर रहे हैं हमें उसके अलावा कुछ करना चाहिए, Right. राइट? बट बहुत लोग क्योंकि डर जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो इनकम स्टेबल कर पाएंगे कि नहीं, या वैसे ही डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर सक्सेसफुल नहीं हुए, राइट? तो लोग हिचकिचाते हैं ये Yes. स्टेप लेने से या अपना कुछ अलग शुरू करने से. तो आई थिंक वो भी एक बहुत इंस्पायरिंग चीज है, प्लस द फैक्ट कि आप दूसरों की हेल्प करना चाह रहे हो. और बिल्कुल. अभी जैसे आपने बताया रेमेडीज का, आपके चैनल पे आपने लिखा है कि, और आप बताते हो कि यू आर अ मास्टर हीलर. तो मैं ये चाहती हूँ कि आप व्यूअर्स के लिए समझाएं कि व्हाट रियली इज अ मास्टर हीलर, और आप कैसे वर्क करते हैं, एंड हाउ एग्जैक्टली डू यू गो अबाउट हेल्पिंग पीपल टू लीड मोर फुलफिलिंग एंड just better lives.
राइट। सो जब भी हम हीलिंग की बात करते हैं ना, सी हीलिंग इज नथिंग बट हमारे जो चीज टूट चुकी है, जो ब्रोकन है, जिसको मेंडिंग की जरूरत है, उसको मेंड करने में मदद करना। एंड जैसे डॉक्टर्स होते हैं जो हमारी फिजिकली इन चीजों में मदद करते हैं, राइट ऐसी ही स्पिरिचुअल मेंडिंग की भी तो जरूरत होती है, राइट? हम बहुत बार इमोशनली टूट जाते हैं, हम फिजिकली टूटते हैं, तो इन सब चीजों के लिए वी हैव स्पेशलाइज्ड पीपल हु हेल्प अस विद प्रोसेसिंग ऑल दीज थिंग्स, एंड वो रिपेयर कराने में हमारी मदद करते हैं। ऐसी ही स्पिरिचुअल रेकिंग भी तो होती है हमारे साथ, राइट? इतने वुंड्स जो हमारे दिल पे, हमारी सोल पे लग जाते हैं, इतनी ऐसी चीजें होती है जो हमें तोड़ देती है, हमारी स्पिरिट को तोड़ती है। जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो आई टॉक अबाउट स्पिरिचुअल हीलिंग, right? And healing can mean very different things to different people, but how I work around with it is कि आपकी जो प्रॉब्लम है, आप उससे ठीक होकर, उसको एक्सेप्ट कर कर, उसको हील कर कर आगे बढ़िए अपनी जिंदगी के अंदर। आई हेल्प यू विद दैट प्रोसेस, बिकॉज जो भी इंसान होता है उसकी इच्छा होती है कि मैं हील करूं, राइट? और फिर एक फासला होता है हील्ड होने में। तो वो जो फासला होता है, वो उसको कवर करने में मैं जो है वो लोगों की मदद करती हूँ कि अच्छा, हमारी इच्छा है कि हम अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, हमें सक्सेस मिले, हमें स्टेबिलिटी मिले जिंदगी के अंदर। मैं वहां पहुंचना तो चाहता हूँ, मेरी मंजिल तो वो है, मेरी इच्छा और मेरी मंजिल का जो बीच का फासला है, वो मैं कैसे कवर करूं, उस चीज में मैं स्टेप इन होकर वो फासले को हेल्प करती हूँ मिटाने में, थ्रू रेमेडीज, थ्रू टैरो, कि ये आपका ऑब्स्टिकल है, ये आपकी ब्लॉकेज बन रहा है, ये आपको करने की जरूरत है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। एंड ये कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें, प्रैक्टिसेस, प्रेयर्स, मंत्रास, पूजास, जो भी है कि आप ये कर सकते हैं जो और ज्यादा आपको अलाइनमेंट पे लेकर आएगा, और आपका ध्यान जो है वो सारी इन भटकाव से हटाकर आपके गोल तक आपको ले जाएगा, राइट? इस तरीके से आई हील। एंड जो मैं होलिस्टिक लाइफ कोच की बात करती हूँ, दैट आई वर्क अराउंड विद दीज थिंग्स, आई एम अ होलिस्टिक लाइफ कोच, जस्ट लाइक दैट। जिंदगी जीना, कैसे चाहिए आपको, किस ढंग से जिंदगी जीना चाहिए, एक सेम लाइफ को आप एक नॉर्मल वर्जन में और अपने हाईएस्ट वर्जन में स्टेप इन होके कैसे जी सकते हो, लाइफ का फुल एक्सपीरियंस आप कैसे ग्रास्प कर सकते हो। एंड जो भी कोई आपकी दिक्कतें हैं, आपकी ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं आपको जिंदगी में, उसको कैसे टैकल करना है, किस माइंडसेट से टैकल करना है। सो होलिस्टिक लाइफ कोचिंग कम्स देयर कि स्पिरिचुअली, माइंडफुली लोगों को जिंदगी जीना सिखाना, एंड उनकी दिक्कतों से उनको लड़ना सिखा देना, उनको उस चीज के लिए प्रिपेयर करना कि जिंदगी में आगे जाकर वो खुद सिचुएशंस का सामना कर सके और सक्सेसफुली उनको ओवरकम कर सके, एंड नॉट जस्ट दैट, अपने आसपास के लोगों की भी मदद कर सके, राइट? सो दैट इज व्हाट आई बेसिकली वर्क अराउंड विद। राइट। एंड आप इसके साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और आपने बहुत लोगों को ऑलरेडी एड्रेस किया है, मोटिवेट किया है। लेकिन एक ये बात होती है ना कि वी ऑल नो द डूज एंड डोंट्स फॉर वेरियस थिंग्स, राइट? लाइक इफ वी टेक अ सिंपल एवरीडे एग्जांपल, हम सबको पता है कि वी नीड अ गुड 8 hours ऑफ स्लीप, वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, स्लीप अर्ली, राइट? बट हम में से कितने लोग फॉलो करते हैं, राइट? अगर करेंगे भी तो वी ऑल नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, राइट? गेट अप अर्ली एंड विद अ फ्रेश माइंड वर्क। बट हम लोगों को सक्सेसफुल होना है, हमें हेल्दी लाइफ जीनी है, पता सब है डूज एंड डोंट्स, बट हम अपने आप को मोटिवेटेड नहीं रख पाते, राइट? अब आई थिंक ये चैलेंज सबको होता है। मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप, बाकी सबको सिखाती, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने आप को हर वक्त, कभी चैलेंजेस हो लाइफ में या डिस्ट्रैक्शंस हो, तो अपने आप को कैसे, ऑफ कोर्स आपको डूज एंड डोंट्स पता है, बट कैसे हर वक्त मोटिवेटेड आप रख पाती हैं? से हर वक्त एक इंसान का मोटिवेटेड रहना, उसको अपने आप को भी ट्रेन करना पड़ता है उस चीज को अचीव करने के लिए लाइफ के अंदर, राइट? एंड मोटिवेटेड, जो आप बात करिए कि मोटिवेटेड कैसे रहते हैं, मोटिवेशन इज नॉट मन से, मोटिवेशन डिसिप्लिन से आता है आपके अंदर, राइट? जब आप सबसे पहला वर्च्यू अपनी लाइफ के अंदर रखते हैं डिसिप्लिन, कि मुझे ये काम रोज करना है,
राइट? इस काम को करने से उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, आप उसके बारे में सोचते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे रोज काम करना है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है मेरे काम से इस दुनिया में, राइट? मेरे काम से किसी की मदद हो रही है, किसी की जान बच रही है, किसी का काम पूरा हो रहा है, मैं स्पिरिचुअली और ज्यादा ग्रो कर पा रही हूँ, मेरी पूजाओं से मुझे प्लस दूसरे लोगों की मदद हो रही है, मैं भगवान के और ज्यादा करीब जा रही हूँ, मैं अपना पर्पस इस लाइफ टाइम में फुलफिल कर पा रही हूँ। जब राइट। आप अपने गोल्स को अपने सामने रखते हैं, वो खुद आपको मोटिवेट करते हैं, लेकिन एक्शन लेने के लिए डिसिप्लिन जरूरी है, क्योंकि मन जो है वो तो आपका भटकाने के लिए ही बैठा हुआ है। क्या राइट। थोड़ा टीवी देख लो ना, क्या हो गया, अरे छोड़ो ना, क्यों हेल्दी खाना है, हम अपने मनपसंद खाना खा लेते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्या हुआ, थोड़ा सा ही तो वेट पुट ऑन हुआ है, कुछ नहीं होता, अब और कम कर लेंगे, कल चले जाएंगे, कल कर लेंगे। उस वो जो मन होता है ना, वो मन को हमें हमें फ्रंट सीट पे नहीं आने देना होता है, एंड वी हैव टू कंट्रोल इट विद आवर सुपर कॉन्शियस माइंड, राइट? तो यानी कि जो आपका कंट्रोलर है, जो आपके घोड़ों की रेन्स पुल कर रहा है, वो क्या चीज है, क्या आपने वो रेन्स अपने मन को दे रखी है? तो फिर तो डेफिनेटली लाइफ जो है वो हेवायर जाएगी, राइट? और अगर आप वही रेन्स अपने एक सुपर कॉन्शियस माइंड को देते हैं, राइट, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, साधना से अपने आप को जितना बेटर समझो, उससे आपके अंदर जागरूक हो जाता है, उसको देते हैं, तो दैट पाथ विल बी वेरी स्टेबल फॉर यू एज वेल, राइट? सो दैट वेज यू अंडरस्टैंड कि मैं जो कर रहा हूँ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके कॉज एंड इफेक्ट क्या है, थोड़ा सा माइंडफुल होना, थोड़ा बैठ के सोचना कि जो मैं चीजें सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, जो मेरी लाइफ है, जो मेरी रूटीन है, जो मेरे थॉट्स है, जो मेरे एक्शंस है, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है मेरे ऊपर, मेरे आसपास के लोगों के ऊपर और इस दुनिया में, right? And that is something that will make you choose things effectively as well, and of course motivate you, going in the right direction. अगर मैं छोटा सा और आपको एग्जांपल बताऊं, मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स भी आते हैं रीडिंग्स के लिए, जो बहुत भटकाव फील करते हैं, मन नहीं लगता पढ़ते हुए, नेगेटिव फील करते हैं, एंग्शियस फील करते हैं, बिकॉज उस टाइम उनका माइंड क्लियर नहीं है, राइट? तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, हम छोड़ देते हैं, या एक ही बुक के सामने जबरदस्ती दे विल सिट एंड दे विल ट्राई टू ग्रास्प दैट इंफॉर्मेशन जो नहीं जा रहा है हेड के अंदर, राइट? अब उस दौरान क्या होता है कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि आप एंग्शियस या नर्वस फील कर रहे हो कि क्या होगा क्या होगा, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पा रही है और एग्जाम आ रहा है, आगे देना ही है, तो क्या करे क्या करे क्या करे, राइट? तो उस दौरान उस सिचुएशन से डिटैच करके सोचना कि वो क्या नहीं पढ़ने दे रहा, क्यों आपको ओवरफिल या ओवर भरा हुआ लग रहा है, उस पहले चीज को अपने से बाहर निकालना, अपना माइंड एम्प्टी करना, थोड़ा सोचना कि क्या आपको रियली परेशान कर रहा है, क्या आप उस एंग्शियसनेस में या नर्वसनेस में ही नहीं पढ़ पा रहे जिसके लिए आपको एग्जाम देना है जाकर, तो दैट मीन्स आप प्रेजेंट मोमेंट में अपना कर्म भी ठीक से फुलफिल नहीं कर पा रहे, जो आपका ऑब्स्टिकल बन रहा है। तो दिस इज माइंडफुलनेस, राइट? अगर हम थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेकर सच्चाई को समझते हैं, सोचते हैं, तो हम सोचेंगे अच्छा ठीक है, हमें टेंशन लेने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, हमारा माइंड फुल है, ठीक है, थोड़ा एम्प्टी करते हैं, लेट्स चैनल आवर एनर्जीज, एम्प्टी आवर माइंड एंड लेट्स सिट अगेन। आप फर्क देखिएगा उस चीज के अंदर कैसे पड़ता है, राइट? So this is something that can keep you very motivated, the consequences of things as well, then you will always try to discipline yourself and go towards the right direction as well, right? राइट। Yeah. तो आप लोगों के साथ ये गाइडेंस, एडवाइस और आपने जो खुद लेसन सीखे हैं वो शेयर करती हैं। एक मैं ये जानना चाहती कि जो आपकी ये अभी लास्ट 2020 से जो आपने ये अपनी जर्नी स्टार्ट करी एज अ टैरो रीडर भी, और आप एज अ हीलर वर्क कर रही हैं, एज अ होलिस्टिक लाइफ कोच, तो इसमें आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट लेसन्स आपने सीखे हैं लाइफ से रिलेटेड? आपके लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे वैल्यूएबल लेसन्स रहे हैं? So I've I've dealt with a lot of people, like lakhs of people, right? उनके mindsets, उनकी सोच, उनकी routines और कैसे function करते हैं, क्या achieve करने की कोशिश कर रहे हैं life के अंदर, a lot of things.
एंड जो मेरी पर्सनल जर्नी भी रही है, मैं सब कुछ मिलाकर अगर आपको एक बात बोलूँ तो दैट इज के वक्त जो होता है, टाइम जो होता है, वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, चाहे वो अच्छा है या चाहे वो खराब है, राइट? तो अपने आप को इस कदर प्रिपेयर करना, अपने आप को इस कदर रेडी करना कि बुरे वक्त में भी आप खड़े रहो, एंड होप एंड अपना एफर्ट डालो टुवर्ड्स कि अच्छा टाइम आए मेरी जिंदगी के अंदर। और जब अच्छा टाइम सच में आता है आपकी लाइफ के अंदर, उसको बहुत अच्छे से बैलेंस करना, उसको निभाना, अपनी ड्यूटीज फुलफिल करना, लेकिन ऑल्सो प्रिपेयर करना कि वक्त कभी भी चेंज हो सकता है लाइफ के अंदर, राइट? तो दैट विल नेवर लेट यू टेक द गुड थिंग्स फॉर ग्रांटेड, and that will never let you cry all the times when you're in bad situations, because time will pass any which ways, right? Right. तो ये जो लर्निंग है ना वक्त की, ये बहुत क्रूशल और बहुत जरूरी है। अगर हर इंसान इस चीज को सीख जाए ना, तो बहुत सारी एनिमिटी, बहुत सारी जजमेंट्स, जेलेसी, ये सब चीजें जो है खत्म ही हो जाएंगी खुद, राइट? बहुत सारा एंशियसनेस, अपने आप को कंपेयर करना दूसरे लोगों से, या किसी जो फैमिली मेंबर्स या जो चीजें आपकी जिंदगी में आज है उसको फॉर ग्रांटेड लेना कि हाँ ये तो आ गई, ये तो हमेशा रहेंगी, इसको तो कल देख लेंगे, इसको तो बाद में सोच लेंगे क्या करना है। ये सारी चीजें आप बंद कर दोगे करना, बिकॉज लिविंग ईच डे एट अ टाइम, कि हमें नहीं पता कल क्या होगा, एंड डूइंग ईच एंड एवरी एक्टिविटी लाइक इट विल बी योर लास्ट एक्टिविटी, ये आपकी जिंदगी के अंदर आपका 100% आपको देने में मदद करेगा। आप कोई भी काम करो, राइट? चाहे मैं एज अ टैरो कार्ड रीडर, मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ, मैं एक वीडियो बना रही हूँ, मैं किसी से बात कर रही हूँ, मेरे सामने कोई रो रहा है, कोई अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता है और मैं उससे बात कर रही हूँ, ऐसे बात करो या ऐसे वो काम करो कि जैसे ये आपकी जिंदगी का लास्ट काम है, राइट? और आप पे सब कुछ निर्भर है। जब आप करोगे यू विल गिव योर 100% एंड दैट विल हैव अ लॉट ऑफ इफेक्ट, यू नो, ओवर व्हाट यू डू। बिकॉज बहुत जो लोग होते हैं ना, वो रोज अपनी लाइफ को एक एक यू नो एक ऐसे लेके चलते हैं दैट ओके चलो आज का दिन निकल गया, कल आ जाएगा, कल उठेंगे, कल फिर कल, वो कल एक हाफ हार्टेड एनर्जी में चला गया, राइट? बट व्हाट हैपेंस जब आप हर चीज को अपना 100% देते हो, ट्रू अपना मन, अपनी हार्ट, अपना सोल, अपनी एफर्ट्स उस चीज में लगाते हो, यू विल सी द डिफरेंस दैट इट मेक्स इन योर लाइफ, in your relationships, in each and everything within yourself and your life, overall life as well. Thank you so much for sharing those lessons. You're most अब welcome. अब आते हैं इंटरव्यू के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पे। प्लीज टेल अस, गिव अस सम गाइडेंस अबाउट द रेस्ट ऑफ दिस ईयर, जुलाई टू दिसंबर। कैसा रहने वाला है ये मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए? Sure. देखते हैं हम. All right. So सबसे पहले I want all my viewers to just close your eyes and connect with my energy. अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं या अगर फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं, तो हमारा कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, आपका फेथ होना, आपकी एनर्जी होना यहाँ पर बहुत जरूरी है, राइट? सो जस्ट क्लोज योर आईज, कनेक्ट, एंड लेट्स सी फॉर यू. All right. मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ एंड देन वंस फॉर ऑल आई विल बी टेलिंग यू.
ओके, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स मैं बहुत स्ट्रांगली जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड्स में फील कर पा रही हूँ। ऐसी चीजें होना जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द ब्लू, थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ। लोगों के लिए यहाँ पर मेजॉरिटी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है एक आपका एक साइकिल जिंदगी का खत्म हो रहा है, और आप खुद उस चीज को खत्म कर रहे हो अपनी खुद की स्ट्रेंथ से, अपनी खुद की पर्सिवरेंस से, एंड विद द हेल्प ऑफ हायर फोर्सेस एज वेल। मैं आपके अंदर की इनर स्ट्रेंथ को बढ़ता हुआ देख रही हूँ। लक जो है आपके फेवर में होने वाला है, और आपके लिए चेंज इज ऑन द कार्ड्स, प्रोग्रेस इज ऑन द कार्ड्स एज वेल। लेकिन जैसे ही ये टफ साइकिल आपकी जिंदगी में एंड होगा, a new cycle begins for you, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। So you can expect some unexpected events to happen in the coming 6 months for you as well, right? And आपके लिए अकम्पलिशमेंट्स भी दिखाई दे रही है, ऐसी कोई चीजें होना जिसको आप सेलिब्रेट करो, जिससे आपको कंप्लीशन फील हो, फुलफिल्ड फील हो लाइफ के अंदर, राइट? एंड जो लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं किसी तरीके के रिलेशनशिप का, मैरिज का, प्रपोजल्स का, और इवन फॉर अ जॉब ऑफर और कंसीविंग, राइट? उस तरीके की एनर्जी, बहुत सारे ट्राइज जो कर चुके हैं, बहुत टाइम से आप काफी डिसअपॉइंटेड एनर्जी में हो, आप वेट कर रहे हो ऐसा कुछ होने का, उसके लिए आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रही है। आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी एंड चीजें आगे फॉरवर्ड जो है बनेंगी आपकी जिंदगी के अंदर। इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको बोला जा रहा है कीप वर्किंग ऑन योर प्लान्स, कीप वर्किंग ऑन योर गोल्स। कंप्लीशन आपकी जिंदगी में जरूर आएगा, इट विल कम, एंड यस न्यू चीजें आपकी लाइफ में स्टार्ट होंगी इन द कमिंग 6 मंथ्स एंड फॉर फ्यू आफ्टर दैट एज वेल। न्यू ईयर की एनर्जी भी आपके लिए बहुत पावरफुल है। नेक्स्ट 10 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। सबसे ज्यादा जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ है दैट आप लोग अपनी ट्रू पावर में अवेकन होकर स्टेप इन होंगे, एंड फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लाइक आई टोल्ड यू, फर्टिलिटी रिगार्डिंग न्यूज बहुत पॉजिटिव है, मैरिज रिगार्डिंग न्यूज बहुत पॉजिटिव है, फैमिली एंड फैमिली को ग्रो करना, फैमिली टाइम आपके लिए आगे जो है वो दिखाई दे रहा है। हीलिंग आपकी जो है वो आगे बढ़ेगी, आप पास्ट की एनर्जी को छोड़ के आगे बढ़ेंगे, एंड जब आप इस एनर्जी में आगे बढ़ेंगे तो यू विल बी ओपन फॉर द न्यू एनर्जीज टू एंटर, एंड समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड ब्यूटिफुल विल हैपन विद यू। सो व्हेन दैट हैपेंस, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एज वेल, राइट? ऐसा लग रहा है जैसे ज्यादातर सबके लिए तो पॉजिटिव होने वाले हैं नेक्स्ट 6 months. So let's all keep our fingers crossed. Absolutely. Yes. Thank you for that reading. It was so nice of you to do that. And आप पर्सनल रीडिंग्स भी ऑफर करती है, राइट? सो प्लीज उसके बारे में बताइए। कोई आपसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहे तो कैसे ले सकता है, एंड हाउ डू पर्सनल रीडिंग्स वर्क? Absolutely. So for personal readings आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी किसी भी वीडियो के नीचे अगर आप जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन्ड है, यू कैन कांटेक्ट, वहीं से आप जाकर कर सकते हैं। यू कैन बुक योर रीडिंग, एंड ऑफ कोर्स वी कैन मीट ऑनलाइन, we can meet for the readings, and I will be able to guide you personally for all your problems, for all your obstacles, क्या करने की जरूरत है और कैसे आप जो है अपने ड्रीम सच्चाई में लेकर आ सकते हैं, रियल वर्ल्ड में लेकर आ सकते हैं। राइट। अच्छा, आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? आपका यूट्यूब चैनल जो है काली रंग, उस पे आपके व्यूअर्स और फैंस को आगे और क्या देखने मिलेगा? और क्या और देख? So, see, I let that be a very surprise element as well, and of course मुझे बहुत बहुत पसंद है कि मैं एक्सप्लोर करती रहूँ, मैं न्यू चीजें करती रहूँ। So like मैं पहले टैरो रीडिंग्स कर रही थी, and me and my twin flame started a series called the Tea on Twin Flame series, right? Right. So that is also something very new, and it was a calling again कि बात करो अपनी जर्नीज के बारे में। यू नेवर नो किसको क्या वहां से लिंक मिले, कौन समझता है, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शंस या एक सही पार्टनर ढूंढना इस लाइफ टाइम में
कैसे आप वो कर सकते हो, कैसे आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं, बहुत ऐसी चीजें जो है हम उसमें बात करते हैं उस दौरान। बहुत कुछ जो यूनिवर्स की लैंग्वेज है उसके बारे में मैं उसके अंदर बात करती हूँ, कैसे यूनिवर्स हमें साइंस देती है, मैसेजेस देती है। And sometimes I even like to post about my personal life, छोटी छोटी चीजें जो मुझे पसंद है, जो मैं करती हूँ। So yeah, Kali Rang is not just about tarot readings. I would say Kali Rang is a very beautiful community, a very spiritual beautiful community जहाँ पर मैं एक wholesome experience, एक spiritual life को कैसे लीड करते हैं, कैसे थोड़ा बैलेंस भी करते हैं हम फिजिकल वर्ल्ड में, कैसे और भी चीजें करते हैं, बट सब कुछ एक अलाइनमेंट के अंदर, चाहे वो कलर्स है, चाहे वो खाना है, चाहे वो टैरो है, चाहे वो बातें हैं, जो भी कुछ है, इट इज ऑल इन द एंड गाइडेड एंड कनेक्टेड विद गॉड, एंड दैट इज माय काली माँ, जिनके नाम पे ये चैनल है काली रंग। राइट, सो आई ट्रूली ट्रूली बिलीव जो भगवान है वो हम सबको दिशा दिखाते हैं, और हमारी चॉइस होती है हमें किस टाइप की जिंदगी जो है लीड करनी है। तो वन स्पिरिचुअली बेस्ड लाइफ, स्पिरिचुअलिटी हमारे बाहर नहीं होती है, हमारे अंदर ही होती है। और जब हम हर एक एक्टिविटी में वो डिविनिटी, वो प्योरिटी, वो भगवान की जो एनर्जी है उसको ऐड कर देते हैं, तो जिंदगी कितनी खूबसूरत, कितनी शांत, कितनी पीसफुल बन जाती है। आई थिंक काली रंग इज अ बिग प्लेटफॉर्म टू शो ऑल ऑफ दोज थिंग्स एज वेल। So we'll look forward to what Kali Rang has to offer next. And anything else that you'd like to share, or any message that you'd like to give to your viewers, or to anybody at all, any message that you'd like to give to people to, better their lives or to follow their dreams. Absolutely. See, I do have some life lessons I would love to share with all of you. And the first one of them is that अपने आप को कभी भी लिमिटेड मत समझो, बिकॉज यू आर अनलिमिटेड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग जिसके अंदर भगवान रिसाइड करते हैं। बट it is only that you have to quieten your 3D mind and let your 5D mind awaken to true consciousness for you coming into your full power. So कुछ भी unachievable नहीं है। किसी भी एज में, किसी भी वक्त में जिंदगी में आपको सारी वो चीजें मिल सकती है जो आप चाहते हैं। राइट, एंड एक हायर पावर में बिलीव करके चलना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो आपके रूट्स को है जो ग्राउंड कर देगा लाइफ के अंदर। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है। एंड इसके साथ साथ दूसरों की जर्नी से अपना कंपैरिजन मत कीजिए, रादर अपनी जर्नी में आप कितने आगे आए हैं उस चीज को देखना बहुत जरूरी है। एंड जो भी आपके पास्ट कार्मिक बैगेजेस है, जो भी चीजें आप कैरी फॉरवर्ड करके आए हो, उन चीजों को हील करना, उन चीजों से बाहर निकलना, उसको कैसे उससे आगे मूव ऑन करना है, वो करना बहुत बहुत जरूरी है आपकी लाइफ टाइम में भी। एंड अपना सोल पर्पस ढूंढना, हर एक सोल जो यहाँ पर आती है एक वजह से आती है, एक स्पेशल काम लेकर आती है, स्पेशल गिफ्ट्स लेकर आती है। तो अपनी इंट्यूशन की हमेशा जिंदगी के अंदर सुनना, उस आवाज की सुनना, जब तक आप उस आवाज की सुनेंगे वो आवाज आपसे बातें करेंगी और आपको रास्ता दिखाएगी। और जिस दिन आप उस आवाज की सुनना बंद कर दो, वो आवाज भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। राइट, सो वो सुनना, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। एंड आप चाहे मटेरियल लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में जो कुछ भी करें, थोड़ा सा वक्त अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने के लिए, भगवान से कनेक्ट करने के लिए और उन ऐसे स्पेशल कामों से कनेक्ट करने के लिए जरूर निकालिएगा जिसके लिए भगवान ने आपको यहाँ पर भेजा है। यू विल एक्सपीरियंस इमेंस सोल satisfaction. It will be like soul food for all of you. So very very crucial you get connected to that. And of course जितनी हो सके, जहां हो सके, लोगों की मदद कीजिए, उनकी जिंदगी में कुछ ऐड करना, नॉट माइनस नहीं। राइट, आपको लोग याद करें, याद रखें तो बहुत अच्छी चीजों के लिए, ऐसे इंसान आप खुद बनो अपनी जिंदगी के अंदर। राइट, एंड अगर आज तक आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम ऐसे नहीं है, तो आज से यू कैन स्टार्ट, इट्स नेवर टू लेट। So I think if you follow all these little things in your life, you will become the best version of yourself. Right. Yeah. Uh, yes.
Thank you so much for taking out the time again for this interview and for doing that wonderful reading and giving us hope for the next few months. So अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, I hope आप लोगों को इसमें lessons helpful लगे होंगे और I hope you are excited about the next few months that are going to bring some changes, some good changes in your life. And uh, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज ऑफ कोर्स डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ऑल्सो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है ऑफ इंटरव्यूज ऑफ popular YouTubers. Do check that out. And I have another new channel, Ronika Wahi's Academy, जिसमें मैं हिंदी के थ्रू इंग्लिश सिखाती हूँ. Do check that out as well. Thank you so much. Thank you so much.